हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सेक्शन से। सो बिफोर दैट लेट अस नाउ हैव अ लुक एट द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज। सो द सिलेबस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फिजिकल ज्योग्राफी, द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, social and environmental geography. So the environmental part, this will be dealt in your environmental classes. The social part will do a little bit about that in the population and settlement section. From the economic perspective, we'll be doing about various resources, then agriculture, industry, and transport. This will also be dealt in your uh, economic section in economics. Here we will do these topics in regards to their geographic relevance. And the main part is the physical geography, which will be doing of India and of world. So in these, we have these major topics that includes geomorphology, oceanography, climatology, biogeography, and then this is a very small topic. Earth and solar system mainly will do the basics about the universe, Earth and solar system. So this is a very short topic, and we'll be starting with this topic only. फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी सेक्शन को। तो हम आज बस इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। So what is geography? If we literally divide it, geo means earth and graphy means description. So geography means the description of earth. Basically geography is the study of places and relationships between the people and their environment. And Aristophanes is called the father of geography. Okay, so now what is the shape of the earth? As we know that the earth is not a perfect sphere, it is not a perfect circle. The shape of the earth is geoid, or also known as oblate spheroid. That is, the earth is slightly elongated at the equator and slightly it is pressed near to the poles. So the diameter of the equator is more than that of prime meridian. Okay. सो हाँ, इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ है इक्वेटर पे वो थोड़ी सी बल्ज्ड है, बाहर को निकली हुई है। तो इक्वेटर पे जो डायामीटर है अर्थ का वो सबसे ज़्यादा है, वाइल जो पोल्स हैं वहाँ से ये उसकी जो लेंथ है वो इक्वेटर से कम है। नाउ द एविडेंसेस ऑफ स्फेरिसिटी ऑफ अर्थ, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ इज नॉट फ्लैट एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप, बट उसके एविडेंसेस क्या है, हाउ वी कैन से दैट? सो उसमें सबसे पहले देयर इज circumnavigation of earth. Circumnavigation का मतलब a person, that was Magellan, who first completed the circumnavigation of earth in 1519. So what he did was he started from one point on the earth, sailed all across the oceans and returned to the same point. So from that he inferred that earth is not a flat point, because अगर वो flat होता तो उसको कोई एज मिलता, बट उसने अपनी जर्नी एक पॉइंट से स्टार्ट की और दोबारा घूम के वो वहीं पे आ गया। दैट मीन्स अर्थ सर्कुलर शेप में है, तभी तो उसी पॉइंट पे वापस आ गया और उसको कोई एज नहीं मिला। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज सर्कुलर होराइजन। उसका क्या मतलब है? सी दिस। सो द होराइजन मतलब जो अर्थ की शेप है, सो ना अर्थ पूरी तो ऐसे गोल है, तो उसका एक पार्ट जो है, जैसे सपोज दिस पार्ट, अगर इसको हम देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, थोड़ा सा कर्व्ड होगा, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। और यही चीज़ हमें इस पॉइंट में दिख रही है इस पिक्चर में कि इट इज स्लाइटली कर्व्ड। फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं, तो व्हेन वी सी द होराइजन एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, तो इट इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, इट इज स्लाइटली कर्व्ड लाइन। ओके, so that is only possible when earth is not a flat
it is not in the form of a straight line, it is a curved part, and the part that we see as horizon is an arc of that bigger sphere. The third point is ship's visibility that we can see from this diagram. मतलब जब शिप हम शोर पे खड़े हैं तो वहां से हमें शिप आती दिख रही है पानी में. सो इनिशियली क्या होगा कि जो शिप का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये सबसे पहले हमें ये दिखेगा, दिस इज द लाइन ऑफ साइट. धीरे धीरे एज द शिप इज कमिंग क्लोजर टूवर्ड्स द शोर, मतलब शिप हमारे पास आ रही है, तो इट विल अपेयर एज स्लाइटली रेजिंग अबव द surface of the water, ऐसे ऊपर आती हुई दिखेगी, उभरती हुई दिखेगी नीचे से. So that is possible when earth is in the form of an curved arc and not a straight line. अगर straight होता तो दूर से भी एक ही पॉइंट पे दिखती, पास से भी एक पॉइंट से दिखती, बट ऐसा नहीं है. So इससे हमने ये कंक्लूड किया कि earth is not a flat surface, it is curved. Similarly, Bedford experiment, इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग दो पोल्स को लगा रहे हैं एक सरफेस पे, अगर एक सरफेस स्ट्रेट होता, एक पोल यहाँ पे लगाया दैट इज पोल ए, यहाँ पे लगाया पोल बी, और यहाँ पे लगाया पोल सी, और दे आर वाइडली सेपरेटेड बाय अ लॉट ऑफ किलोमीटर्स, मतलब इनका डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इनके बीच में. तो अगर अर्थ एक स्ट्रेट सरफेस होता, मतलब ये स्ट्रेट सरफेस होता, तो इन सभी की जो हाइट है और लेंथ है वो हमें सेम पॉइंट पे दिखती, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में दिखते. बट एक्चुअली में क्या होता है, इस डायग्राम में से देख सकते हैं हम लोग कि जो ए है और सी पोल है वो थोड़े से नीचे लगते हैं, और जो उनके बीच में लगा है दैट इज द पोल नंबर बी, वो थोड़ा सा उनसे ऊपर हाइट में लगता है, जैसे कि इतना. सो इसका क्या मतलब है कि अगेन अर्थ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट सरफेस, बिकॉज अगर ये सीधा सरफेस होता तो तीनों जो पोल्स हैं उनकी हाइट एक जितनी होती, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कर्व है, तो ये वाले जो ए और सी है ये थोड़े से नीचे लगते हैं, और जो बी है वो थोड़ा सा ऊपर को लगता है. दिस इज नोन एज बेडफोर्ड एक्सपेरिमेंट. ओके, सो अगला पॉइंट क्या है, डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट लोकेशंस. हम लोगों को ये पता है कि ईस्ट में जो है वो सन जल्दी राइज करता है और वैसे ही छुपता भी जल्दी है. सपोज हम लोग इंडिया का ही एग्जांपल ले लें, तो इंडिया में, लेट मी ड्रॉ अ मैप फॉर यू. मैं रफ सा मैप बना रहा हूँ यहाँ पे. सो सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट इंडिया, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट. तो यहाँ पे ईस्ट प्लेसेस में जो सन है वो जल्दी राइज होगा, और जो एक्सट्रीम वेस्ट है, सपोज ये गुजरात का पार्ट हम लोग अगर दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सनराइज है वो लेट होगा इतने टाइम में. फॉर एग्जांपल अराउंड 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा रफली, आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्टली, बट इतने डिस्टेंस में इतना टाइम आ जाएगा. सो ईस्ट में सन जल्दी राइज करता है और सेट भी जल्दी करता है, वाइल जैसे जैसे हम लोग वेस्ट की तरफ जाते जाते हैं तो उसकी जो टाइमिंग है वो लेट होती जाती है. सो डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ द सनराइज एंड सनसेट एट डिफरेंट लोकेशंस. अगर अर्थ फ्लैट होती तो एक पूरे पार्ट में एक ही टाइम पे सनराइज होता और सनसेट होता, बट ऐसा इस पे नहीं है. सो दैट मीन्स दैट अर्थ इज नॉट अ स्ट्रेट सरफेस, इट इज अ कर्व्ड सरफेस. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्लिप्सिस. इक्लिप्स मतलब ग्रहण, सूरज का और मून का. तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो इक्लिप्स है, इक्लिप्स में जो हमें शैडो दिखती है, सपोज अगर अर्थ पे मून की शैडो पड़ रही है, तो दैट विल बी ऑल्सो इन अ स्फेरिकल शेप, ऐसे गोल एक पर्टिकुलर एरिया में अंधेरा हो जाएगा अर्थ पे. और अगर हम लोग सोलर इक्लिप्स देखते हैं, अगर फुल सोलर इक्लिप्स है, तो हमें जो दिखता है दैट इज ऐसे एक रिंग दिखती है. सो अंदर वाला पार्ट पूरा ब्लैक हो जाएगा, डार्क होगा, और साइड में यहाँ से ये जो सनलाइट की थोड़ी सी एक रिम दिखती है. सो उससे हम लोगों को साफ पता चलता है बिकॉज दैट शैडो इज स्फेरिकल इन शेप. और अगर सन जो है वो भी स्फेरिकल है, मून भी स्फेरिकल है, तो अर्थ इज शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन टू दैट.
अर्थ को भी स्फेरिकल ही होना चाहिए। ओके, अदर प्लैनेटरी बॉडीज आर आल्सो स्फेरिकल इन शेप। और अगर सभी जो बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में अगर वो स्फेरिकल शेप में दिख रही हैं, तो अर्थ शुड नॉट बी एन एक्सेप्शन, अर्थ भी उसका ही पार्ट है। तो अर्थ शुड ऑल्सो बी अ स्फेरिकल बॉडी। देन फाइनली एरियल फोटोग्राफी, उसमें तो हमें पता चल ही गया कि अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड और जियोइड शेप। ऐसा कंप्लीटली ऐसा गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है। दैट इज, इट इज pressed at one end, at the two ends, and slightly bulged at the opposite two ends. It's all about this topic of the evidences of sphericity of Earth, and in the next video we will be studying about the longitude and latitude and other topics also. So thank you.